So good morning all of you. Why did you join this academy? What is the purpose of joining this institute? To be fluent in English speaking, okay? To enhance ourselves, okay? Why did you join this academy? Pardon? Speak louder. To improve English, okay? To build confidence, okay? To develop personality, all right? Anybody else, any other purpose of you joining this institution? To be a better person. So majority of you people who are sitting in this room have joined us with an idea of making your English better. Yes or no? So I'll ask you a few questions and we'll see whether we are moving on the right direction or not. So my first question to you, how many of you believe that if we have to be fine with our English language, then it's very important for us to have a very powerful vocabulary? Raise your hands. Those who believe that if we want to be effective speaker of English language, then we need to have a very strong vocabulary. Those who believe, raise their hands. जो मानते हैं कि अच्छी इंग्लिश के लिए हमके पास बहुत सारे शब्द होने चाहिए. Almost everybody believes. All of you believe that we need to have good vocabulary. So let me tell you, this is wrong. This is wrong. The average vocabulary of a person which is required for speaking good English is 1300 words. Research says that if I want to be an effective communicator, I need to have 1300 words with me. With those 1300 words, I'll be able to speak effectively. And the child who goes to KG school, his average vocabulary is 1500 words. How many words? एक बच्चा जो केजी में जाता है उसकी जो वोकैबुलरी है उसके पास 1500 शब्द होते हैं और रिसर्च ये कहती है कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए हमको कितने शब्द चाहिए? 1300. So first thing, that I will be a good speaker only when I'll have lot of words with me. This is wrong. With the limited words also you can be effective speaker. I'm talking to you for the last 30 seconds or 1 minute. Yes or no? You understood everything which I have said? It means all the words which I'm using are majorly understood by you. But are you able to speak the way I'm speaking? Answer is no. Are you understanding it or not? So it is not how many words you know which makes your English powerful. It is how you use those words which you already know. आपके पास कितने ज़्यादा शब्द हैं ये मायने नहीं रखता है. आप जो शब्द ऑलरेडी जानते हैं उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये इम्पॉर्टेंट है. So first notion that in order to be very good speaker of English language, I got to have too many words with me is wrong. With limited vocabulary also you can be an effective speaker, provided you know how to play with the words. Provided you know how to play with the words. How many of you sitting in this room believe that grammar is important for us? Without grammar nahi chalega. Raise your hand those who believe grammar is important. And those who believe grammar is not important, they raise their hands. Okay? जो मानते हैं कि ग्रामर के बिना भी हो जाता है, ग्रामर आवश्यक नहीं है, वो हाथ खड़े कीजिए. 1, that's all. 2, okay. 3, okay. 4. धीरे धीरे बढ़ेंगे, सभी अपना खुल कर आएंगे आगे. अभी सोच रहे हैं बोले नहीं बोले, हैं? So let me tell you, those who believe that without grammar also, without studying grammar also, or without grammar we can speak good English, let me tell they are wrong. They are wrong. No other language except your mother tongue can be learnt without learning the grammar of that language. I repeat, no other language except your mother tongue can be learned without learning the grammar of that language. कोई भी भाषा सिवाय तुम्हारी मातृभाषा के बिना ग्रामर के सीखे नहीं सीखी जा सकती है. So don't listen to all those motivational speaker who says बोलो जो भी मन में आता है, बोलो बोल बोल कर तुमको आ जाएगी, ग्रामर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना ग्रामर के इंग्लिश हो जाती है. If you have to say I don't know, तो आपको I don't know ही बोलना पड़ेगा. वहाँ पे I will not know से काम नहीं चलेगा. Because the moment you say I will not know, ये गलत हो चुका है. The moment you say I don't know ही ठीक है. Are you understanding what I am trying to say? A child who is born in English speaking family will by default speak English, but will he speak right English or wrong English? He'll speak right English. Though he has not studied tenses, modal voices, passive voice, nothing. Yet he is speaking right grammar.
Why? Because he has listened to his parents. Similarly, when you talk in Hindi, majority you talk right Hindi. But did you learn the grammar of Hindi? You didn't learn the grammar of Hindi. Very true. But तुमने सुना है बचपन से उसको. By default तुम उसको सही बोलते हो. So similarly, if my child is born in my family and I don't teach him grammar and I talk to him in English all the time, when he'll grow up, he'll speak right English. But that will be grammatically correct. And if you are brought up in Hindi environment, Hindi school, and now you want to talk in English, it's impossible for you to speak without mastering the grammar. You need to know the rules of tenses. You need to know the rules of voices. You need to know how to use preposition. You must be free with the use of conjunction. And if you don't study them and you think that no, by speaking, I will be able to, yes, you can. But for that, you have to be a very dedicated learner in which you got to listen very, very carefully to the people and then imitate them and then repeat. क्या उतना कर पाओगे कि पूरा दिन में 12 घंटे तुम्हारे साथ कोई लगा रहे, इंग्लिश में बोलता रहे, ऐसा माहौल मिलेगा तुमको? नहीं मिलने वाला ना. For how long you come in this academy? 1.5 hours. In this 1.5 hours, grammar plays the role of a tool. ग्रामर एक औजार है आपके पास जिसका इस्तेमाल करके आप अपने विचारों को हिंदी से किस में परिवर्तित करते हैं? इंग्लिश में. और ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा. पहले लेवल पे कहाँ जाएगा? आपके ब्रेन में. तो जब ब्रेन पे जाएगा तो आपको लगेगा बोल मैं अभी भी नहीं पा रहा हूँ. डोंट वरी, यहाँ तो चला गया. अब ये तो मालूम हुआ कि डू कहाँ पर है, ये तो पता चला डिड कहाँ पर है, ये तो पता चला वॉज वर और डिड में क्या डिफरेंस है, ये तो मालूम चला सेकंड फॉर्म कब लगती है, थर्ड फॉर्म कब लगती है, फर्स्ट फॉर्म. ब्रेन में जा चुका है. नाउ यू हैव टू ब्रिंग इट टू टंग. अब कहाँ पर लाना है इसको? जुबान पर. उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? कौन सा प्रैक्टिस? कैसा प्रैक्टिस बताइए? आई एम टीचिंग यू द आर्ट एंड साइंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, ताकि तुमको मालूम हो जाए कि एकेडमी के आने के अलावा मुझे करना क्या है. डेली रूटीन प्रैक्टिस मतलब क्या करोगे उसमें? उस प्रैक्टिस में क्या करना है? ओके 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 ओके. टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है तो उसको समझो और फिर सीखो, या आप ये मानते हैं कि जो अगर सीखना है तो रट्टा मार लो काम चल जाएगा? कौन सा अप्रोच ठीक है? रटने वाला या पहले वाला, समझने वाला? समझने वाला. वेरी गुड. इट इज रॉन्ग. इट इज रॉन्ग. सी व्हेन यू स्टडी मैथमेटिक्स तुमको समझना पड़ेगा. When you study physics तुमको समझना पड़ेगा. When you study chemistry तुमको समझना पड़ेगा. But when you study Hindi, when you study Sanskrit, when you study English, समझने के लिए कुछ है ही नहीं. You have to read it, repeat it, learn it, repeat it, learn it, repeat it. इसमें सिर्फ याद करने की चीजें हैं और उनको दोहराना होता है. Have you ever seen people who are learning how to chant mantras? Do they understand? They simply say Om Bhur Bhuva Swa Tasviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. आप ब्राह्मण जब मंत्र पढ़ रहा होता है उसको बीच में टोक दो, पूरा मंत्र भूल जाएगा वो. और फिर वो शुरू पे जाता है, फिर स्टार्टिंग से बिगिन करता है, क्योंकि पूरा मंत्र उसको याद कहां होगा? लय के साथ याद होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? सो व्हेन वी लर्न इंग्लिश, अपार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, मेजॉरिटी इज टू बी प्रैक्टिस्ड, एंड इन दैट वी हैव टू रिपीट एंड रिपीट. For example, I said that when you're angry and you want to show your anger to somebody is disturbing you again and again, he's pushing you again and again, so you lose your control, you lose your temper, you feel angry. और गुस्से में आप बोलते हो हिंदी में तेरा दिमाग खराब है, पागल हो गया क्या तू? What do you say in English? What the hell are you doing? Have you gone mad? Are you crazy? अब ये 3 सेंटेंस हो गए. पहला क्या है? What the hell are you doing? सेकंड क्या है? Have you gone mad? थर्ड क्या है? Are you crazy? अब अगर हिंदी अनुवाद करो तो आर यू क्रेजी का मतलब क्या तुम दीवाने हो? हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो? व्हाट द हेल आर यू डूइंग? अब हेल का अगर वैसे मीनिंग लो तो इसका मतलब नर्क होता है. तो अब क्या बोलोगे? तुम क्या नर्क कर रहे हो? ऐसा तो नहीं हुआ ना. ये तीनों सेंटेंसेस एक सिचुएशन में यूज होते हैं जहां पर आप अपना क्या शो कर रहे हो? गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन. अब इसमें समझने के लिए कुछ है क्या? आपको इसको रिपीट करना पड़ेगा विद एक्सप्रेशन. The moment you speak this sentence, what the hell are you doing? Once. What the hell are you doing? Twice. What the hell are you doing? Thrice. And every day you come consciously that when I want to sit with my friends, I'm going to use this sentence the moment they'll trouble me.
आई एम डूइंग इट इंटेंशनली, मैं जानबूझकर इसका इस्तेमाल कर रहा हूं. व्हाई? बिकॉज आई वांट कि मेरे प्रैक्टिस पैटर्न में चला जाए. सो स्लोली एंड स्लोली यू विल फाइंड लॉट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस विल कम जो आप बोलना चालू कर दोगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट और नॉट? सो आई सेड ग्रामर भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ग्रामर पढ़ ली, समझ ली, और उससे आप सोचोगे कि अब मैं इंग्लिश बोलने लग जाऊंगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है. इंग्लिश बोलने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? चीजों को सुनकर, उनको याद करके, उनको रिपीट करना पड़ेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? आर वी मीटिंग गाइस? देखिए अभी मैंने एक सेंटेंस क्या बोला यहां पे, आर वी मीटिंग गाइस. यानी कि जब मैं बोलना चाह रहा हूं कि भाई हम दोनों के बीच में संवाद बन रहा है ना, तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना, तो मैं क्या बोल रहा हूं? आर वी मीटिंग, आर वी मीटिंग. अब अगर तुम वैसे मीनिंग उठाओ तो मीटिंग का मतलब क्या होता है? मिलना. अब तुमने तो मीटिंग का मीनिंग मिलना पड़ा हुआ, अब तुमने बोला मीट का मतलब तो मिलना होता है. ये आदमी बोल रहा आर वी मीटिंग, गलत है. लेकिन अगर कान खुले हैं तुम्हारे और तुमने सुना ये बोल रहा आरवी मीटिंग, आरवी मीटिंग, आरवी मीटिंग, बार बार बोल रहा है, इसका मतलब होता है समझना. और अगली बार तुमने बोल दिया मैं भी इसको यूज करूंगा, तो कहां यूज किया? मां गई बेटे को पढ़ाने लगी और समझाया, देख बेटा ऐसे ऐसे करना होता है, ऐसे ऐसे करना होता है. बेटा आरवी मीटिंग, यस और नो? तुम और हमारा बात बन रहा है ना, तो मेरा बात समझ रहा है ना, तो वहां पे उसने इमीडिएट यूज कर लिया क्या? आरवी मीटिंग. या फिर उसने बोला आर यू गेटिंग मी, आर यू गेटिंग मी, तो उसने यूज कर लिया सेंटेंस. अब ये तुम्हारा हो गया. आर वी मीटिंग गाइस? So one thing, we don't require very huge vocabulary in order to be a fine speaker. With limited words also we can be a dynamic speaker. Second, we have to study grammar, but when we study grammar we need to practice it, and we need to practice it, we have to read it louder and repeat it. जैसे मान लीजिए अगर आप जिम में जाते हो and you say कि मेरे को अपना थाइज को स्ट्रांग बनाना है, तो एक्सरसाइज आर्म्स की करोगे या लेग्स की करोगे? और अगर आप बोलते हो मेरे को बाइसेप स्ट्रांग बनानी है, तो एक्सरसाइज चेस्ट की करोगे या बाजुओं की करोगे? बाजुओं की करोगे, राइट? सो आई से आई वांट टू बी अ इफेक्टिव कम्युनिकेटर एंड डायनामिक स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इट मींस व्हेन आई हैव टू टॉक टू पीपल, आई एम गोइंग टू यूज माय वॉइस. मेरे को अपनी आवाज का इस्तेमाल करना है. आई एम गोइंग टू यूज माय लिप्स, आई एम गोइंग टू यूज माय जॉ, आई एम गोइंग टू यूज माय होल सिस्टम, होल वोकल सिस्टम. यानी कि जो मेरे बोलने का एक वोकल सिस्टम है, जिसमें मेरा वोकल कॉर्ड आ जाता है, मेरा जॉ आ जाता है, मेरे लिप्स आते हैं, मेरी टंग आती है, इनको प्रैक्टिस देनी पड़ेगी. Why? Because over a period of time इनको क्या बोलने की आदत है? हिंदी. तो हिंदी में ये मस्त चलते हैं, लेकिन जैसे आप इंग्लिश में बोलना चालू करोगे ये मूव नहीं करेंगे. सो इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और इनकी प्रैक्टिस कैसे होती है? बाय रीडिंग समथिंग लाउडली, बाय रीडिंग समथिंग लाउडली. सो इंग्लिश लर्निंग में दो चीजें बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं. एक को सुनना बोलते हैं और दूसरा ऊंचा पढ़ना. जो भी व्यक्ति सुनता है इंग्लिश को खूब ज़्यादा, वो जल्दी सीखता है, और जो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में पढ़ता है वो भी जल्दी सीखता है. क्योंकि जब वो ऊंची आवाज़ में पढ़ रहा है तो उसका वोकल ऑर्गन्स को प्रैक्टिस मिल रहा है, और जब वो कानों से सुन रहा है तो सबसे तीव्र गति से सीखने वाली इंद्री जो है वो हमारे कान होते हैं. बचपन में जब तुमने हिंदी बोलना चालू किया, ना तो तुमने कोई किताब पढ़ी, ना तुमने कोई वाक्य लिखा, तुमने अपनी मम्मी को सुना, पापा को सुना और बोलना चालू कर दिया. तो क्या इन्वॉल्व थी तुम्हारी? कान, ईयर्स इन्वॉल्व थे. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? वही प्रैक्टिस, वही फॉर्मूला मुझे अभी इंग्लिश लर्निंग में भी लाना है. सी गाइज, लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो? एंड इफ यू वांट टू बी हैप्पी एंड चीयरफुल इन लाइफ, हाउ वुड यू फील हैप्पी एंड चीयरफुल? कब महसूस करते हो खुश? कब आनंद आता है तुमको जीवन में? हाँ, ओके, फिर तुम पूरी जिंदगी दुखी रहोगे, क्योंकि अपने अनुसार जीवन साला कभी चलता ही नहीं है. बेटा तू भी दुखी रहेगा, क्योंकि जो तू चाहेगा वो मिलना है नहीं. ऐसा तो कोई माई का लाल नहीं हुआ. वेरी गुड. जब आप कुछ हासिल करते हो, यस और नो, you feel good when you achieve something. You feel good when you achieve something. Or we'll put it in this way, we feel good when we are fresh. We feel good when we are fresh. जब हम ताजा होते हैं, नए होते हैं, तो हमको कैसा महसूस होता है? फॉर एग्जाम्पल, जब तुम शादी के लिए तैयार होते हो, एकदम नए कपड़े डालते हो, कैसा लगता है? यू फील गुड ना? चलो, जिस दिन तुम अपने आइटम से मिलने जाते हो, बढ़िया सेंट वेंट लगा के, उस दिन कैसा लगता है? अब उसमें बोलो नो एक्सपीरियंस. Now you'll not say no experience. Now you have got too much of experience. You feel good, na? So the moment we are fresh, we feel
Good. The moment we are stale, we don't feel good. And how do we become fresh? By inculcating something new in us. Today I have a particular way of talking. After 3 months I have changed my style of talking. I'm better now. I feel good. Today I have got this much of limited knowledge. I feel good. But after 3 months I have got the same kind of knowledge. No, I'll not feel good. Why? Because now I'm stale. I'm not feeling fresh. But here I have one set of knowledge. Here I have got another set of knowledge. So I feel good. Why? Because I am growing. I am growing. So growth makes me feel good. Growth is something which makes me love me. Growth से ही मैं खुद से मोहब्बत करने लगता हूँ. Anybody who doesn't grow doesn't love himself. Anybody who grows, he loves himself. तो growth चाहिए मेरे को. And if I want to grow, then I have to put efforts on me. देखिए एक बच्चा जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, फिर आगे चला जाता है और बूढ़ा हो जाता है. और if you ever meet old people, तो बूढ़ा आदमी दुखी होता है, मेजॉरिटी. और वो एक डायलॉग जरूर बोलता है, बचपन कितना अच्छा था. Yes or no? This is the common statement of most of the old people. They say बचपन कितना अच्छा था. वाकई बचपन अच्छा था क्या? उस बच्चे से पूछो जिसकी माँ ने उसको हगीज पहना दिया और उसने सुसु कर दिया और उसने खोला नहीं और वो चिल्ला रहा है. उसकी बेचैनी देखी कि पूरा गीला है, माँ अपने काम में बिजी है, हगीज बदल नहीं रही है, वो चिल्ला रहा है. उसको हर काम के लिए किसी के ऊपर निर्भर रहना. तुमको लगता है उसका जीवन सुंदर था? अगर वाकई इतना सुंदर होता तो उसमें जल्दी नहीं होती बड़ा होने की. बच्चे में बहुत जल्दी होती है बड़ा होने की. क्यों? क्योंकि वो भी क्या चाहता है? इंडिपेंडेंट होना, अपने आप चीज़ों को करना. एंड इफ यू एवर सी द चिल्ड्रन हु ग्रो, जिस दिन वो चीज़ें अपने आप करने लगते हैं उनको अच्छा फील होता है. आर वी मीटिंग गाइस? यस और नो? लेकिन बूढ़ा आदमी क्या बोल रहा है? बचपन कितना अच्छा था. व्हाई? क्योंकि इससे कुछ गलती हुई है. उस गलती को अभी भी नहीं देख रहा, उस गलती को नहीं देख रहा और भूत में देख रहा और बोल रहा बचपन कितना अच्छा. आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन. यू स्टार्टेड अ कंपनी एट पॉइंट ए. पॉइंट ए पे तुमने एक बिजनेस शुरू किया एंड इन दैट बिजनेस यू आर अर्निंग प्रॉफिट ऑफ 10-15,000. देन यू वर्कड हार्ड, your profit went to 20,000. Then you worked hard, your profit went to 50,000. Then you worked hard, your profit went to 1 lakh. और आज 10, 20, 25, 50 साल बाद तुम्हारी कंपनी का टर्नओवर है 150 करोड़. हाउ मच? अब तुम बोलोगे वो 10,000 वाला टाइम अच्छा था, आज मैं फिर से वही 10,000 कमाऊं, बोलोगे ऐसा? तुमको कौन सा बढ़िया लग रहा है? 150. क्यों है अच्छा ये? क्योंकि यहां पर क्या दिख रही है? ग्रोथ. यहां पर क्या है? ग्रोथ. तो ये बूढ़े के साथ क्या हो गया कि इसको बुढ़ापा अच्छा नहीं लग रहा है. गड़बड़ ये हो गई कि बूढ़ा तो हुआ लेकिन ग्रो नहीं कर पाया. क्या नहीं कर पाया? ग्रो. ये फिजिकली बड़ा हो गया, इसका कैलेंडर एज बड़ा हो गया, मानसिक तौर पे बड़ा नहीं हो पाया, इमोशनल तौर पर बड़ा नहीं हो पाया. इसका जो साइकोलॉजिकल, इमोशनल और मेंटल ग्रोथ था वो नहीं हुआ. ये जीवन को नहीं समझ पाया, ये जीवन को नहीं समझ पाया. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? सो इफ वी वांट कि हम 60 की उम्र में ये ना बोलें कि बचपन कितना अच्छा था, तो हमको हर पल में क्या करना पड़ेगा? ग्रो करना पड़ेगा. सी गाइस, you have come on this planet Earth now, okay? Whether you love it or you don't love it, no problem. जीवन तो ऐसे ही चलेगा. और जैसा कि इसने बोला कि जब चीज़ें अपने हिसाब से हो जाएं तो ऐसा होता नहीं है. एक बार एक अमीर आदमी था और उसके पास बहुत दौलत थी, तो उसने सोचा क्या किया जाए इस दौलत के साथ. तो उसने एक कंपटीशन अरेंज किया और उसने सभी लोगों को एडवर्टाइज किया न्यूज़पेपर में कि मेरे पास बहुत पैसा है, एक कंपटीशन है, उसमें हिस्सा लो, जो भी इस कंपटीशन को जीत जाएगा मैं उसको $100 million दे दूंगा. नो, $100 million is a big money. And lot many people came to participate in the competition. So when people came on that fine day to participate in the competition and gathered at his palace, he told the people that I have a swimming pool which is almost 200 meter wide and 200 meter long. And your job is to swim across the swimming pool. And whosoever swims across the swimming pool will be given $100 million. People were excited. They were good swimmers. They said, yes, we want to participate. It's not a big deal. He said, okay, fine. So all of you come to the swimming pool. I want to show you something. So the moment people reached at the swimming pool, they found that the swimming pool is full of hungry crocodiles. He said, this is a swimming pool and terms and condition, you have to cross it. But on the way, if you get killed,
और यू आर ईटन बाय दिस क्रोकोडाइल, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरा मगरमच्छ से भरा हुआ तालाब, पूरा स्विमिंग पूल, मर जाओगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, और जीत गए तो मैं तुमको कितना दूंगा, $100 million। पीपल सर्वेड द होल स्विमिंग पूल एंड दे फाउंड दैट इट्स इम्पॉसिबल टू क्रॉस इट because it's full with crocodiles and they all are hungry. They are waiting that somebody should come in the swimming pool and we'll finish him. Everybody backed out. हर कोई पीछे हट गया, लेकिन एक कोई पतला सा था, कूद गया वो, और ना केवल कूदा, उसने स्विमिंग पूल क्रॉस भी कर दिया। And when he crossed it, he came out. Everybody started congratulating him. Very good, very good. You did a great job. He said, stop congratulating me. पहले मुझे ये बताओ किस हरामी ने मुझे धक्का दिया था। So life is like this. तुमको फेंक दिया है, तुमको क्या किया है, धक्का दे दिया। तुमसे पूछा नहीं था कि तुमको जाना है या नहीं जाना है, तुमको भेज दिया। और अब इसके अंदर क्या है, क्रोकोडाइल्स हैं, तुमको पार करने होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? तुमको ये क्या करने पड़ेंगे, पार करने पड़ेंगे। देखिए, बोलिए, एक शब्द बोलिए, परिस्थिति, फिर बोलिए मनोस्थिति, फिर बोलिए आत्मस्थिति। फिर से बोलिए, परिस्थिति, मनोस्थिति, आत्मस्थिति। अब बोलिए सिचुएशन, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बीइंग। सिचुएशन, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बीइंग। आपके जीवन में 3 चीजें रहती हैं। एक को बोलते हैं सिचुएशन, दूसरे को बोलते हैं स्टेट ऑफ माइंड, तीसरे को बोला जाता है स्टेट ऑफ बीइंग। इस सिचुएशन इन योर कंट्रोल, क्या परिस्थितियों पर आपका नियंत्रण है? आपके नियंत्रण में नहीं है। तो अगर परिस्थिति पर आपका नियंत्रण है ही नहीं, तो उसके बारे में रोने से कुछ चलेगा? नहीं चलेगा ना। फिर वो अच्छी आई या जैसी आई, वो तुम, और 2 ही तरह की आएंगी, 2 ही तरह की सिचुएशन आपके जीवन में आएगी। 1 फेवरेबल, 2 नॉन फेवरेबल। 1 विच इज फेवरिंग यू, 2 विच इज नॉन फेवरिंग। यानी कि एक वो समय होगा जब आपके मन की हो रही होगी, और दूसरा वो समय होगा जब आपके मन की नहीं हो रही होगी। लेकिन अगर इसका आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो आपका जीवन खराब हो जाता है, अल्प प्रभाव पड़ता है तो आपका जीवन बेहतर है। और अगर बिल्कुल भी सिचुएशन का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो मान लीजिए आप संत हो चुके, तो मुझे क्या करना है कि मेरे ऊपर सिचुएशन का कैसा इंपैक्ट पड़ना चाहिए, कम पड़ना चाहिए। सो इफ आई वांट दैट सिचुएशन शुड नॉट अफेक्ट मी मच, व्हाट शैल आई वर्क अपॉन? आई शैल वर्क अपॉन माई स्टेट ऑफ माइंड। मुझे किस पर काम करना पड़ेगा? अपनी मनोस्थिति पर। If my state of mind is balanced, if my state of mind is in equanimity, situation will not impact me. तो परिस्थिति का मुझ पर क्या होगा? प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सिचुएशन तो उतनी बुरी नहीं है जितना बुरा मेरा स्टेट ऑफ माइंड है, और हल्की सी दिक्कत आती है और मेरा स्टेट ऑफ माइंड जो है बिल्कुल टॉस पे चला जाता है, और मैं लाइफ को और कॉम्प्लेक्स कर देता हूं। जस्ट इमेजिन, वन फाइन डे यू गो टू एन ऑफिस हैप्पीली thinking that your boss will give increment because appraisal time है, and you are very excited that आज तो मेरे को appraisal मिलने वाला, मैंने बहुत मेहनत की है और मेरा increment हो जाएगा, promotion भी मिलेगी। And when you reach company, you find that your boss calls you in the office and says, Vijay, we are very happy with your services and this is an envelope for you. In this you have your this month's salary along with the bonus and your suspension letter. We don't need your services anymore. अब आप क्या सोच कर गए थे? इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन मिलेगी, और बॉस ने तुमको क्या पकड़ा दिया? लव लेटर। हाँ, ये लो, हम खुश हैं, अब आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए। क्या हुआ? शॉक। पूरा ऐसा लगा जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ नहीं बचा। यस और नो? नो, देयर इज अ मैन वी कैन लर्न फ्रॉम। यू हैव लॉस्ट जस्ट अ जॉब, nothing else, and very obvious you have skill and experience, you will get job within a week, 10 days or a month. आपको कहीं और लग भी जाएगी, that's not a problem because you're experienced, you have worked here also, so very obvious when you are able to work in this company, you will be able to work in another company also. लेकिन अगर मेरा स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो जो बीच का फेस है वो खराब होगा, और पॉसिबिलिटी है कि आई एंड अप कॉम्प्रोमाइजिंग विद द जॉब ऑल्सो। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ बेटर जॉब, मैं डर जाऊंगा, और डर में मैं कोई छोटा मोटा नौकरी पकड़ लूंगा कि पता चले ना मिले तो। ये भय है मेरे भीतर का। ये सुनो, अब एक आदमी है जिसको बोला जाता है कि कल आप इस राज्य के राजा बनने वाले हैं,
और मोस्ट डिजर्विंग आदमी है, जिसको हर कोई पसंद करता है, और उसको अगले दिन सुबह घोषित किया गया है कि अगले दिन इसका राज्याभिषेक होगा और इसे राजा बनाया जाएगा। और रात को उसको पता चलता है कि उसको राज्याभिषेक नहीं मिलेगा, उसको 14 साल का वनवास मिलेगा। इंस्टेड ऑफ राज्याभिषेक उसको क्या दिया गया? 14 साल का वनवास। हु इज ही? लॉर्ड रामा। घबराए थे वो, रोने बैठे कि ये क्या हो गया मेरे साथ, या उन्होंने बोला मैं देखता हूं ऐसे कैसे कोई मेरे को भेजता है, मैं बड़ा हूं, मेरा डिजर्विंग, मैं अभी बगावत कर दूंगा। ही एक्सेप्टेड इट, ही एक्सेप्टेड इट। एंड प्लीज, 14 साल के लिए जब राम अयोध्या से जंगल में चले गए, तो 14 साल अयोध्या में क्या हुआ ये हम में से किसी को नहीं मालूम है, लेकिन उन 14 साल में राम के साथ क्या हुआ ये हम सबको मालूम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? इट इज अ करेज ऑफ रामा, it is that equanimity of Rama which pulled everybody towards his life, not towards Ayodhya. तो लिखने वालों ने भी जब जीवन को लिखा तो उन्होंने राम को ही लिखा, अयोध्या को नहीं लिखा, क्योंकि राम का जो बैलेंस था, राम की जो एक्सेप्टेंस थी जीवन के प्रति, जो सिचुएशन है उसको स्वीकार किया सहज भाव से, विद बैलेंस इन हिज माइंड। पूरा राइटर जो गया वो रामायण में जो भी लिखता है वो वही लिखता है जो 14 साल में राम के साथ वनवास में होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? So please understand it. In your life also you will get various ups and downs. Those are situations. But will those situations impact you or not? That will depend on what? Your state of mind. So what is most important? My state of mind कैसा रहना चाहिए? Balance, equanimity में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए? बोलिए जोर से। Equanimity. Equanimity बोले तो balance. अभी इसी वक्त, in the now, वर्तमान में। हमारा जो मन होता है, माइंड होता है, ये वर्तमान में नहीं रहता, या तो ये भूत में चला जाता है या भविष्य में चला जाता है। एंड वेन एवर इट विल गो इन पास्ट इट विल ब्रिंग अ गिल्ट फ्रॉम देयर, व्हेन इट विल गो इन फ्यूचर इट विल ब्रिंग अ वरी फ्रॉम हियर। योर माइंड इट ट्रेवल्स ईदर इन द पास्ट और इट गोज इन द फ्यूचर। फ्यूचर में जब भी जाएगा तो चिंता को उठा कर लाएगा, भूत में जब भी जाएगा तो गिल्ट को उठा कर लाएगा, वर्तमान में नहीं रहता। और जीवन कहाँ पर है? वर्तमान में। ताकत कहाँ पर है? वर्तमान में। जो कुछ भी हो सकता है वो कहां हो सकता है? इन द नाउ। बट वेयर इज माइंड ट्रैवलिंग? ईदर इन द पास्ट और इन द फ्यूचर। अ मैन कम्स फ्रॉम चेन्नई फॉर सम ऑफिशियल वर्क एंड ही कंप्लीट्स हिज ऑफिशियल वर्क। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क ही हैज एनफ ऑफ टाइम, उसके पास काफ़ी समय बच जाता है, तो सोचता है कि चलो मैं चेन्नई से दिल्ली आया हूं तो क्यों ना दिल्ली घूम लिया जाए। तो वो एक टैक्सी हायर करता है और टैक्सी वाले को बोलता है कि भैया मुझे दिल्ली दिखा दोगे? वो बोलता है हाँ जी दिखा देंगे। तो उसको दिल्ली घुमाने के लिए चल पड़ता है, वो टैक्सी में बैठ जाता है। तो जब वो टैक्सी में बैठता है, थोड़ा बोर हो रहा होता है, तो सोचता है चलो क्यों ना टैक्सी वाले से बात कर ली जाए। तो बात करने के लिए पीछे से वो टैक्सी वाले के कंधे में हाथ रखता है कि चलो इससे कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया जाए। बट सडनली जैसे ही वो कंधे पर हाथ रखता है, टैक्सी वाले का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। ऐसे लगता है टैक्सी वाले को कोई शॉक लग गया और गाड़ी लेफ्ट राइट। ये आदमी के भी पसीने निकल रहे हैं कि हो गया आज तो काम। बट चलो सम हाउ टैक्सी वाला ब्रेक अप्लाई करता है और गाड़ी रुक जाती है। एंड चिन्नी मैन सेज व्हाट हैपेंड? ही सेड डोंट यू डियर टच मी व्हेन आई एम ड्राइविंग द कार। कभी भी जब मैं गाड़ी चलाऊं तो मुझे पीछे से हाथ मत लगाना। बोला क्यों? इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया? बोला बड़ा बात हो गया। बोला क्या बड़ा बात हो गया? बोला मैं पहली बार टैक्सी चला रहा हूं। उसने बोला क्या तुम पहली बार गाड़ी चला रहे हो? बोला हाँ। बोला इससे पहले क्या करते थे? बोला इससे पहले मैं वैन चलाता था। अभी तो और बड़ा शौक हो गया। इसने कहा साला वैन चलाता है, टैक्सी चलाता है, वन एंड द सेम थिंग, एक ही तो बात हुआ, उसमें कौन सा अलग साइंस है? दोनों एक जैसा ही तो चलता है। ही सेड नो, बहुत बड़ा डिफरेंस है, तुमको नहीं मालूम। बोला क्या डिफरेंस है? बोला डिफरेंस ये है कि जो मैं पहले वैन चलाता था उसमें मैं डेड बॉडीज कैरी करता था। Did you understand? Now my question to you, did this man, the taxi driver, experience the touch of the hand of this man? ये जो ड्राइवर था, क्या इसने आदमी के हाथ के स्पर्श को अनुभव किया जो वर्तमान में था? नहीं, उसने एक पास्ट मेमोरी को अनुभव किया, पास्ट से उठाकर लाया वो। Are you understanding it or not? So this is how our mind is. This is how our mind is. अभी तुम टेबल पे पढ़ने के लिए बैठे हो,
फिर फ्यूचर में चले जाते हो, यार इंटरव्यू है, हो भी पाएगा नहीं, 3 महीने बाद, मुझे लग नहीं रहा हो पाएगा। अभी पढ़ने बैठे हो लेकिन इंटरव्यू 3 महीने बाद, मुझे लग नहीं रहा हो पाएगा। फिर पीछे चले जाते हो, पहले भी यार पिछली बार भी बुरा हाल हुआ था, मैं इंटरव्यू देने गया था, टांगें कांप रही थी, इंग्लिश तो निकली नहीं थी जरा भी, बस यही बोला था सर माय नेम इज़ राहुल, उसके आगे तो कुछ हुआ ही नहीं। अब ये कहाँ चले गए? भूत में चले गए। So we have to train our mind to be in the now. If you don't train your mind to be in the now and you don't understand that there is no power in past, there is no power in future, the power is in present only, you will spoil your life. आपका जीवन कैसा हो जाएगा? खराब। तुमको इंग्लिश नहीं आती है, नो प्रॉब्लम। तुमको इंग्लिश नहीं आएगी ऐसा नहीं है, आएगी, लेकिन काम कब करना पड़ेगा? इस वक्त। और सीधा सीधा फॉर्मूला देखिए, ओनली 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग गुड इंग्लिश। इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, 4 चीजें हैं जो तुमको रोज करनी है। अब ये डिपेंड करता है कितनी मात्रा में तुम करो। जितनी ज्यादा मात्रा में करोगे उतनी जल्दी आ जाएगी, जितनी कम मात्रा में करोगे उतना समय लेकर आएगी। देयर आर 4 थिंग्स विच यू नीड टू डू. It depends upon how much you do. If you do more, you will get quick result. If you do less, you will get result, but little late. 1, you need to read English every day. You have to read every day. And when you read, there are 3 purposes of reading it. 1, you are reading it with an idea of giving practice to your tongue. For that, you have to do loud reading. For that, you have to do loud reading. Second, you are reading it with an idea of picking up certain words and sentences. For that you have to have a copy with you. कोई नया word लिया, लिख लिया, ये अच्छा था। कोई नया sentence उसमें से निकला, याद कर लिया, कॉपी में लिख लिया, ये अच्छा था। Third, you read it with an idea of understanding it. जब आप तीसरी उसमें पढ़ रहे हैं उसको समझने के लिए, तो आपको स्लो रीडिंग करनी होती है। सो एक रीडिंग हुई स्लो रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा हूं उसका मीनिंग समझने के लिए, ओके। एक हो गया लाउड रीडिंग, व्हेन आई एम रीडिंग इट विद एन आइडिया ऑफ गिविंग प्रैक्टिस टू माय वोकल कॉर्ड। और एक हो गया उसमें से मैं वर्ड्स और सेंटेंसेस निकाल रहा हूं। कोई बड़ा रॉकेट साइंस है? रीड करना मुझे रोज इंग्लिश। अब डिपेंड करता तुम 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, आधा घंटा करो, ज़्यादा नहीं कर सकते हो। कम से कम 5 मिनट सुबह लाउड रीडिंग, 5 मिनट शाम को लाउड रीडिंग। इफ यू डू एवरी डे, वेरी सून यू विल बिकम अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सेकेंड, यू नीड टू राइट इंग्लिश। पहली होगी रीडिंग, दूसरा क्या है? राइटिंग। यू गॉट टू मेक अ पॉइंट दैट रोज मैं कम से कम 100 वर्ड्स का एक टॉपिक तो जरूर लिखूं, मैं कुछ ट्रांसलेशन तो जरूर करूं, मैं कुछ सेंटेंस मेकिंग तो जरूर करूं। आई केम अक्रॉस अ वर्ड और उसमें मुझे बोला गया मैंडेटरी, और टीचर ने मेरे को बोला मैंडेटरी का मतलब होता है जरूरी। तो मैंने बोला इंग्लिश इज मैंडेटरी इन अवर लाइफ। मैंने एक सेंटेंस बना दिया, इट इज मैंडेटरी टू वियर मास्क इन द लेबोरेटरी। मैंने एक और सेंटेंस बना दिया, स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक एडमिशन इन आवर स्कूल, इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू स्पीक इंग्लिश। मैंने एक और वाक्य बना दिया। तो अब मैंने शब्द को अकेला नहीं लिया, मैंने शब्द से क्या बनाया? सेंटेंसेस बनाए। देन आई डिसाइडेड कि मेरे को एक पैराग्राफ भी लिखना चाहिए। सो आई पिक्ड अप अ वेरी सिंपल टॉपिक, फैन। मैंने फैन को उठा लिया और फैन पे लिखना शुरू किया। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट फैन। यू नो फैन, इट्स एन electrical machine which gives us air, and it is used in plain areas where there is a lot of heat. We get variety of fans available. We have wall mounting also and ceiling fan also. There are lot many companies which are making fans, but I have been using fan of Usha company. Usha is very popular brand of India. You can buy a fan of 1000 rupees also, and you can buy a fan of 1 lakh rupees also. In every home, in every room, you will find there are fans. Without fan, living in the month of May and June is impossible. अब ये मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ भी लिखे जा रहा हूँ। Are you understanding it or not? क्योंकि मेरे को अगली टेक्निक क्या है? रीड करने के बाद मुझे क्या करना है? राइट करना है। या फिर आपने शाम को लिखना शुरू कर दिया। टुडे इन द मॉर्निंग आई वेंट टू माय ऑफिस। इन माय ऑफिस आई हैड अ वेरी बैड टाइम विद माय बॉस. माय बॉस स्कोल्डेड मी बिकॉज आई कुड नॉट कंप्लीट द टारगेट and I was insulted in front of my whole colleague. I felt bad, but later on I realized that it's okay, no problem. It was my fault, and my boss did very right thing, so I don't mind it. I let go, and tomorrow I'll go with better performance and will again win the appreciation of my boss. तो जो सारा कुछ तुम्हारे मन में विचार थे किसी घटना को लेके, वो लिख दिए। तीसरा होता है लिसन इंग्लिश। You got to listen too much of English. जितना ज्यादा सुन सकते हो सुनो। Listen to the podcast of people, good podcast and good speakers, right? Genuine people. अभी तुम बैठ जाओ एल्विश यादव को सुनने के लिए, तुम्हारा तो बेड़ा गर्क है।
फिर तुमको कौन बचाएगा? Listen to good people, those who talk sense, and at the same time talk in English. Because what is the purpose of you? You are listening podcast not primarily with the mindset of understanding. You are listening it with not with the mindset of gaining knowledge. You are listening it with the mindset of improving your English. जब हम आपके जैसे थे, छोटे थे, और जब हम इंग्लिश सीख रहे थे, तो अगर हमारे ये प्रोग्राम आता था टीवी के ऊपर, फिल्म फेयर अवार्ड एंड ऑल, तो उसमें हम एक ही चीज़ में इंटरेस्टेड थे, एंकर में. किसमें? एंकर में. क्योंकि वो आकर इंग्लिश बोलता था. तो कभी शाहरुख खान आया, उसने एंकरिंग किया, कभी सैफ अली ने किया, या कोई और उस समय करता था. उस समय एक सिमी ग्रेवाल होती थी, बहुत सॉफ्ट इंग्लिश बोलती थी, उसको हम सुनते थे. तो वहाँ से हम क्या करते थे? इंग्लिश चुराते थे. फिर तुम्हारा ये शेखर सुमन होता था, इसका एक प्रोग्राम आता था, मूवर्स एंड शेकर्स, बहुत सुंदर प्रोग्राम था, ये इंग्लिश में करता था पूरा ग्राम. इसको हम सुनते थे, उसको हम कॉपी करते थे. सो एवरीथिंग विच वी हैव लर्नड इज बाय इमिटेटिंग पीपल. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? ये प्रोवर्ब बोलिए, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी. बोलिए, फिर से बोलिए, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी. One more time. Imitation is the best form of flattery. चाइनीज में ये प्रोवर्ब है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो जो व्यक्ति ऑलरेडी जानता है उसकी नकल कीजिए. इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल देन कॉपी, इमिटेट अ सक्सेसफुल मैन. इमिटेट करना मीन्स नकल उतारना. मार्केट में इमिटेशन आती है ना ब्रांड्स की, तो इमिटेशन यानी कि उसकी कॉपी. सो आई वांट टू टॉक इंग्लिश एंड आई फाइंड समबडी स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश. नथिंग, कीप वॉचिंग हिम, keep listening him, and just wait for 3 months. You'll be having the similar sort of expression which that person has got. दो चीजों पर हमेशा भरोसा रखिएगा अपनी, एक आंखें और एक कान. ये इतने खूबसूरत हैं और इतनी तेजी से सिखाते हैं कि आप सोच नहीं सकते. Your ears and your eyes, use them properly. Watch a person carefully when he is talking to you. Watch your role model carefully. Listen to that person carefully. What sort of word, what kind of sentence, what sort of emphasis he is giving on the words, and just copy it. Keep watching, keep watching, keep watching. You watched it for 30 minutes, then imitate him for just 5 minutes. Just 5 minutes every day. And see the miracle happening with you in a period of 3 months only. You will become a dynamic speaker. And let me tell you, अगर तुम में ताकत आ गई ना बोलने की, तो तुमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट कोई नहीं हो सकता. क्योंकि जिस व्यक्ति में बोलने की ताकत है उसमें आत्मविश्वास भरा होता है. यस और नो? सो यू हैव टू डेवलप इट. व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली यू लव योरसेल्फ. तुमको इंग्लिश तो स्ट्रांग करना ही है, तुमको बोलने की कला में भी माहिर होना. क्यों? क्योंकि तुम खुद से मोहब्बत करते हो. People who love themselves, they want to be dynamic. People, those who don't love themselves, they don't want to be dynamic. आप खुद से मोहब्बत करते हैं, इसकी पहचान ही ये है कि आप अपने आप को ताज़ा रखते हो, आप अपने आप को फ्रेश रखते हो, आप कुछ नया अपने अंदर लेकर आते हो, अपने आप को ग्रो करते हो. और उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं. 5 minutes I have to read in the morning, 5 minutes I have to read in the evening, 20 minutes I have to write in a whole day. 25 मिनट इसमें कुल गए. ओके और 10 मिनट के लिए मैंने किसी को सुन लिया, 35 मिनट चले गए. 25 मिनट मेरे को जो यहाँ पढ़ाया वो मैंने रिवाइज कर लिया. डन. 1 घंटा मात्र. हाउ मच? 1 hour only. And this 1 hour can give you an asset for rest of your life. When you will grow up, you will get married, and then you will have a child also, and one day you will have to go for PTM in the school. तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ जाएगा, तुम चलोगे, तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ चलेगी. फिर टीचर के आगे तुम बैठ जाओगे. फिर बेटा तुमको देख रहा होगा कि पापा कुछ बोल भी पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, मम्मी कुछ बोल भी पा रही है, नहीं बोल पा रही है. तो बेटे ने देखा कि मैडम ने तो खूब सुना दी, मेरे बाप के मुंह से उफ तक नहीं हुई, मेरी माँ के मुंह से शब्द नहीं निकला. तुम्हारा बेटा हो जाएगा कॉन्फिडेंट. उसको कॉन्फिडेंट बाप नहीं दिख रहा है, उसको कॉन्फिडेंट माँ नहीं दिख रही है. टीचर ने बोल दिया, योर चाइल्ड इज नॉट स्टडिंग वेल इन द क्लास, ही इज डूइंग दिस एंड दैट, ही डिस्टर्ब्स द होल क्लास, एंड ही सेज सॉरी मैडम. घर में भी बहुत दुखी करता है. बेटा किसका है? तुम्हारा. क्लास में डिस्टर्ब कर रहा, तुम्हारा काम है, मैडम का काम है? आपका जवाब क्या होना चाहिए? मैडम, हु इज इन द क्लास, यू और मी? यू आर इन द क्लास ना.
If you are not able to handle him, that is your problem, not my problem. I have no problem with him at home. He is very silent at home and sits peacefully. And if he is disturbing in the class, you look after him. Or if you want me to take care of him, give me half of your salary, I'll come and I'll take care. And I'll show you, he'll not disturb in the class. बोलो ना साला ऐसा. क्यों नहीं बोलते? तुम्हारी औलाद है. देखिए, जेन्युइनली आई एम आस्किंग यू, बच्चा क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है, ये बाप संभालेगा या टीचर संभालेगा? टीचर संभालेगा ना. इसमें बाप क्या कर सकता है? तो बाप ये सुन ही क्यों रहा है? और टीचर ये बोल क्यों रहा है? इसलिए बोल रहा है क्योंकि टीचर को मालूम है कि बाप के पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, जवाब नहीं दे पाएगा, और वो अपना बोझ तुमको दे देगा, तुम घर जाके उसकी ठुकाई करोगे. तुमको अपनी औलाद से नफरत हो जाएगी, साला क्या पैदा किया. PTMs are made to make you realize that you have committed a mistake. PTM एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपको अध्यापक ये महसूस करा देता है कि आपने बहुत बड़ी गलती की है. Are you understanding it or not? But you are not able to defend your child. Why? Because you are not a good speaker. आप जानते नहीं हो कि शब्दों से खेलना कैसे है. आप जानते नहीं कि बात को सही तरीके से रखना कैसे. You go over there, talk genuine things. Most of the time when we used to go to PTM, so we used to find वहाँ मम्मी बैठी है. अरे PTM में तुमको एक पेपर पे साइन करना है, मुश्किल से 1 मिनट लगना चाहिए या 2 मिनट टीचर से बात करने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. वो आइटम 10 मिनट खा गई है. मैडम ये रोटी भी नहीं खाता घर में, मेरी तो सुनता ही नहीं, आप इसको कुछ सिखाओ. तेरी नहीं सुन रहा, जिसने तुझे पैदा किया इसकी क्या सुनेगा? इसका तो अपना नहीं सुनता. ये तेरे को कैसे संभाले? इसकी अपनी टेंशन है कि मैं अपने वाले को कैसे संभालूं. स्कूल ने बोल दिया कि आज संभालो सबको, और इसे कुछ ना कुछ बोलना, और तू उसको लूप दे रही है. बच्चा खाना नहीं खा रहा, ये मैडम देखेगी या मां देखेगी? सुबह जल्दी नहीं उठता, ये मैडम देखेगी या मां देखेगी? ये मां का काम है ना कि बच्चा नहीं उठ रहा है सुबह, तू देख क्यों नहीं उठ रहा है? तू रात को सोती नहीं टाइम पे, रात को हैवी खिला देती होगी इसको, इससे सुबह उठा नहीं जाता. ये थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं है, एक लगाती सुबह अगर नहीं उठता तो कैसे नहीं उठेगा? Are you understanding what I am trying to say? You need to understand what is your job, and you need to understand what is the job of a teacher. Teacher is there to teach. And if child is not performing well in this class, talk to the teacher that his marks are not coming good. So tell me what is the issue. और उसको बात करने से पहले बच्चे से पूछो कि are you not understanding in the class? अगर बच्चा कह रहा है मुझे टीचर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है, तो घबराओ मत टीचर को ये बोलने में कि भाई इसको पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है, आप देखिए ये मना कर रहा है, नहीं समझ आ रहा, क्या करे बताओ. आपके स्कूल में मैं इतनी हैवी फीस दे रहा हूं, अगर मेरा बच्चा आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है तो ये आपका जॉब है देखना कि इसको क्यों समझ नहीं आ रहा है. या तो ये बोलो कि क्लास में अटेंशन पे नहीं कर रहा, कुछ तो बोलो. Are you understanding what I am trying to say? So becoming a good speaker and knowing how to play with word is mandatory for you, because it will reflect a confident image of your personality. जब आप मुंह खोलेंगे और आपके मुंह से शब्द निकलेंगे, और वो शब्द अगर धारा प्रवाह हुए, सुंदर तरीके से आपने कहे, तो आपके व्यक्तित्व की एक अलग छाप पड़ेगी. देखिए अभी मैंने हिंदी में आपसे बोला, तो आपको मेरा हिंदी का वार्तालाप कैसा लगा? सुंदर था, अति सुंदर. तो ये पकड़ होती है भाषा में. Are you getting it or not? Whether you talk Hindi, you talk English, or you speak Punjabi. You ever see Punjabi movies? बहुत सुंदर बोलते हैं पंजाबी. कभी ओरिजिनल पंजाबी सुनना, क्या रस टपकता है. बहुत मीठी भाषा है, मतलब पावरफुल भी है, लेकिन और ऐसी हरियाणवी सुनना, कहां पे जाओगे तुम? मतलब एक छोटा 6 साल का बच्चा भी तुमको धमका सकता है अगर उसने ढंग से हरियाणवी बोल दिया, और तुम 6 फुट के हो, एक बार के लिए सोचोगे इसको हाथ लगाऊं या नहीं लगाऊं, पता नहीं साला कौन है, तोप है ये. ताकत किस में है? भाषा में. हरियाणा की भाषा ऐसी है कि इसमें ताकत है, आदमी डर जाता है. पंजाब की भाषा मीठी है, दिलेरों वाली भाषा, बहुत स्वीट लैंग्वेज है. इसी तरह इंग्लिश है, इसी तरह हिंदी है. जब आप इसको बोलते हैं, अगर आप तरीके से बोलेंगे तो आपकी पर्सनालिटी का एक इंप्रेशन पड़ेगा और उससे आपको एडवांटेज मिलेगी. तो पहला हमने क्या बोला? यू हैव टू रीड इंग्लिश. व्हाट डिड वी से? सेकंड, यू हैव टू राइट इंग्लिश. थर्ड, व्हाट वी सेड? यू हैव टू लिसन इंग्लिश. एंड फोर्थ इज यू हैव टू स्पीक. यू हैव टू स्पीक. बोलना पड़ेगा आपको.
Whatever little you learn, try to speak. Commit mistakes, no problem. But do not repeat mistakes. Commit mistakes, but do not repeat mistake. If you came to know that यहां पर do लगना है तो उसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो, अगली बार do ही लगाओ. बट आप ये सोचो कि एक दिन सुबह होगी, मैं उठूंगा और बिल्कुल ठीक इंग्लिश बोलूंगा, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा. ऐसा दिन कभी नहीं आएगा. आप गलत भी बोलोगे, सही भी बोलोगे, किसी दिन बहुत अच्छी बोल पाओगे, किसी दिन बिल्कुल नहीं बोल पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन तुम्हारे अंदर एक जुनून होना चाहिए, जोर लगाओ बोलने का. कमिट मिस्टेक्स, नो प्रॉब्लम. द मोमेंट टीचर टेल्स यू समथिंग, नॉक योर ब्रेन एंड से इसने बोला ये नहीं आना था, ये आना था, मैं ये बोल रहा था, तो मैं ऐसा क्या सोचकर बोल रहा था, ये तो गलत है. फिर मैम ने ये बोला तो ये वाला सही क्यों है, समझ आ गया, नहीं समझ आया टीचर से पूछो, वो तुमको बताएगी, फिर तुमको समझ आएगा. ओके, मेरे को ये ऐसे बोलना है. टीचर ने बोला, मैंने बोला था आई एम अग्री विद यू, टीचर ने बोला ये तो गलत है. टीचर ने बोला आई एम अग्री नहीं बोलना है, आई डू नॉट अग्री बोलना है, तो मुझे तो नहीं समझ आ रहा आई एम अग्री क्यों गलत है. तो टीचर से जाके पूछा कि मैम वाई आई एम अग्री इज रॉन्ग, आई डू नॉट अग्री क्यों ठीक है. तो मैम ने बताया कि बेटा अग्री वर्ब होता है, और वर्ब जब होता है तो डू के साथ फर्स्ट फॉर्म में लगता है, एम के साथ तो आईएनजी में लगता है. तो मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मैं डू नॉट लगेगा, अग्री एम के साथ नहीं आएगा. तो आपको पता चल गया ओके, अग्री वर्ब होता है, और वर्ब जब आता है फर्स्ट फॉर्म में तो डू के साथ आता है, इज एम आर के साथ नहीं आता. अब याद हो गया, अब तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि मेरे को हमेशा क्या बोलना है, आई डू नॉट अग्री विद यू. अब आपके मुंह से कभी निकलेगा नहीं आई एम अग्री विद यू, क्योंकि तुमने अपने ब्रेन को क्या किया, नॉकिंग किया. गड़बड़ कहां होती है, टीचर ने तुम्हारा मिस्टेक ठीक किया, तुमने सुन लिया, लेकिन उस पर चिंतन नहीं किया, उस पर तुमने रुक कर सोचा नहीं कि ये ठीक क्यों और ये गलत क्यों. तो फिर बदलाव नहीं आता है. क्या नहीं आता है, बदलाव नहीं. सी गाइस, व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी साइंटिफिक अप्रोच. बहुत स्ट्रॉन्ग चीज बताने वाला हूं, लिसन इट वेरी केयरफुली. व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश, you have to go through various stages, and the moment you reach the fourth stage, then only you'll be able to speak it effectively. So you have to take it to the fourth stage. हमारे यहाँ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है, 6 month, और मिनिमम नॉर्मली 3 या 2 months रहता है. आर यू कॉन्फिडेंट कि 6 महीने में आएगी, यस और नो? देखो ये गड़बड़ हो जाती है, भरोसा नहीं है साला अपने ऊपर. तुम तय कर लो ना कि आएगी, कैसे नहीं आएगी. करूंगा मैं, जिद पे तो उतरो, जिद क्यों नहीं है. यू ऑल आर सच डायनामिक पीपल, बट वो जिद नहीं है ना, जिद करो कि हाँ आएगी. यस, आती है. प्रोफिशिएंसी के लिए तुमको आने वाले जीवन में 2-3 साल इसको देने पड़ेंगे. हाउ मेनी ईयर्स, 2-3 years. आने वाले 2-3 साल इंग्लिश के पीछे पड़े रहना, छोड़ना मत इसको. स्टार्ट रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, स्टार्ट वॉचिंग प्रोग्राम्स इन इंग्लिश. वेर वी गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पीकिंग, स्पीक. और ये जो 3-4 बातें बताई, इसको रेगुलर करते रहिए. लेकिन क्या 3-4-6 महीने में आती है? बिल्कुल आती है. एक पागलपन चाहिए तुमको उसको सीखने के लिए, आएगी जरूर. कैसे आती है और कैसे आपको चौथी स्टेज पे पहुंचना है, इसको समझो. देयर आर 4 levels ऑफ लर्निंग. हाउ मेनी लेवल्स? 4 level. फर्स्ट लेवल, जब भी हम किसी चीज को सीखते हैं, शुरुआत करते हैं, तो जो हमारा पहला लेवल होता है, वो फर्स्ट लेवल को बोला जाता है आई डोंट नो दैट आई डोंट नो. बोलिए एक बार, मुझे नहीं मालूम कि मुझे नहीं मालूम. तो यहां पर मैं क्या होता हूं, बेवकूफ होता हूं. मुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे मालूम नहीं है. यहां पर कुछ नहीं हो सकता है. आई डोंट नो दैट आई डोंट नो. मुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे मालूम नहीं है. जैसे इमेजिन कीजिए, मैं गाड़ी में बैठा और मेरी 2.5 साल की बच्ची दौड़ कर आती है, मेरी गोद में बैठ जाती है और बोलती है पापा गाड़ी मैं चलाऊंगी. और वो स्टीयरिंग को पकड़ के ऐसे ऐसे करती है. क्या वो जानती है कि वो गाड़ी चलाना नहीं जानती है? वो नहीं जानती है. उसको लगता है कि ऐसे ऐसे करके क्या चलेगी, गाड़ी चलेगी. यस और नो? तो ये कौन सा स्तर है, मुझे नहीं मालूम कि मुझे नहीं मालूम. फिर सेकंड स्टेज आती है. अब यही बच्चा हो गया है 12 साल का, अब इसको मालूम है कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती. कौन सा लेवल है ये? सेकंड लेवल. आई नो दैट आई डोंट नो. बोलिए, फिर से बोलिए, मुझे मालूम है कि मुझे नहीं मालूम है. यू आर एट दैट सेकंड लेवल. दैट्स व्हाई यू हैव कम टू एकेडमी. तुमको मालूम है कि तुमको इंग्लिश नहीं आती है, दैट्स व्हाई यू हैव कम. यू नो दैट यू डोंट नो हाउ टू स्पीक पावरफुली. यू नो दैट यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. तभी तुम यहां पर आए. ये कौन सा स्तर है? दूसरा. यहां से सीखना आरंभ होता है.
यहाँ पर क्या होता है, सीखना आरंभ होता है। अब मेरी बेटी हो गई लेट से 15-16 साल की, और वो अब गाड़ी चलाने के लिए आ गई, क्योंकि उसको मालूम है उसे गाड़ी चलाना नहीं आती है, तो सीखने के लिए आई। तो सीखने के लिए जब आई, वो सीट पे बैठती है, फिर देखती है ये स्टीयरिंग है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, ये गियर है, फिर वो स्टार्ट करती है गाड़ी को, फिर एकदम धीरे धीरे चलाना शुरू करती है, फिर गाड़ी बंद हो जाती है, फिर स्टार्ट करती है, फिर चलती है। साथ में मैं बैठा हूँ, उसको सिखा रहा हूँ कि बेटा अब फर्स्ट गियर डाल, अब सेकंड गियर डाल, अब तीसरा गियर डाल, अब फटाफट ब्रेक लगा, टर्न करना है, धीरे धीरे टर्न कर, ओके, स्टीयरिंग को सीधा रख, हल्का सा टर्न कर। अब ये कौन सा पीरियड चल रहा है, उसका लर्निंग पीरियड, ओके। अब 15-20 दिन जब ऐसा होता है, तो 15-20 दिन क्या हो, तो थोड़ी थोड़ी गाड़ी चलाने लग जाती है। अब वो तीसरी स्टेज पे पहुंच जाती है, आप भी तीसरी स्टेज पे पहुंचेंगे, उसको बोला जाता है आई नो दैट आई नो। बोलिए, फिर से बोलिए, मुझे मालूम है कि मुझे मालूम है। कौन सी है तीसरी स्टेज, मुझे मालूम है कि मुझे मालूम है। यानी कि इस स्टेज पे जब वो गाड़ी चलाएगी तो बिल्कुल अवेयर होकर चला रही कि अब पहला गियर लगा दिया मैंने, ओ 40 हो गया, दूसरा गियर लगा दिया, अरे 60 हो गया, तीसरा गियर लगा दिया, अरे 70 हो गया, चौथा गियर लगा दिया। उसको मालूम है उसने राइट टर्न कब लिया, उसको मालूम है उसने लेफ्ट टर्न कब लिया, उसको मालूम है उसने ब्रेक कब लिया। वो हर चीज को बिल्कुल कॉन्शियस होके कर रही है। अग्री डिसएग्री? सो यू ऑल्सो कम एट थर्ड स्टेज, जब आप इंग्लिश बोलते हो आपको पता अभी प्रेजेंट टेंस लगा, अभी कुड लगाया मैंने, अभी शुड लगाना है, अभी मेरे को वुड लगाना है। तो ये कौन सी स्टेज है, तीसरी स्टेज, जहां तुमको मालूम है कि तुमको मालूम है। यहां गलतियां होंगी, बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे, लेकिन बोलोगे। और फिर आती है चौथी स्टेज। चौथी स्टेज होती है आई डोंट नो दैट आई नो। कौन सी है चौथी स्टेज, फिर से बोलिए, मुझे नहीं मालूम है कि मुझे मालूम है, मुझे नहीं मालूम है कि मुझे मालूम है। यानी कि अब मेरी बेटी एक दिन अंदर से निकली, चाबी उठाई, गाड़ी स्टार्ट किया, सेक्टर 15 में गया, शॉपिंग किया, घर वापस आई, पार्क कर दिया गाड़ी और अंदर चलेगी। अब उससे पूछो कि तूने पांचवा चौथा गियर कब लगाया, तो उसको मालूम नहीं है। उसने लेफ्ट कब टर्न किया, राइट कब टर्न किया, ब्रेक कब अप्लाई किया, उसको नहीं मालूम है। अब गाड़ी उसकी ऑटो पायलट मोड पे चल रही है, उसके पैरों को मालूम है कब ब्रेक लगानी है, उसके हाथ को मालूम है कब गियर चेंज करना है, उसके हाथ को मालूम है कितना स्टीयरिंग टर्न करना है, सब करना है। कहाँ चला गया अब ड्राइविंग, उसके हैबिट मोड में जा चुका है, ऑटो पायलट मोड। कौन सा मोड? Similarly, when I'm talking to you right now, I don't have to bother about any word. I don't have to bother about any sentence. I don't have to bother about any tense. I don't have to bother whether I should speak Hindi or English. My common sense is telling me when shall I use Hindi, when shall I use English. मेरा common sense मुझको बता रहा है कब मुझे हिंदी डालनी है और कब मुझे इंग्लिश डालनी है। कैसे हो रहा है ये? क्योंकि ये कहाँ जा चुका है मेरे सिस्टम में, ऑटो पायलट मोड। So now my question to you, if you want to be perfect with your communication, if you want to be perfect with your English speaking, कौन से लेवल पे ले जानी पड़ेगी? और ऑटो पायलट पे ले जाने के लिए सबसे ज्यादा काम कौन से लेवल पे करना पड़ेगा? थर्ड लेवल पे। आई नो दैट आई नो। जब मुझे मालूम है कि मुझे मालूम है, उस लेवल पे अगर तुमने दबा कर काम कर लिया तो ऑटोमेटिकली कहाँ शिफ्ट हो जाओगे? चौथे लेवल पे। और जब तक तुम चौथे लेवल पे नहीं जाओगे, परफेक्शन नहीं आएगी, परफेक्शन नहीं आएगी। उससे पहले काम चलाऊ होती है, कभी कभी ठीक हो जाएगा, कभी कभी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर तीसरे लेवल पे तुम टूट पड़े इस चीज पर, पूरी तरह लगे रहे, तो कंफर्म है चौथा लेवल आएगा। और इफ यू रीच द फोर्थ लेवल, यू बिकम अ डायनामिक स्पीकर। क्या बन जाते हो आप? डायनामिक स्पीकर। आर वी मीटिंग गाइस? यस और नो? सो व्हाट इज द फर्स्ट लेवल? आई डोंट नो दैट आई डोंट नो। मुझे नहीं मालूम कि मुझे नहीं मालूम। व्हाट इज द सेकंड लेवल? आई नो दैट आई डोंट नो। मुझे मालूम है कि मुझे मालूम नहीं है। यहां से सुधार की शुरुआत होती है। एंड देन कम्स अ थर्ड लेवल, आई नो दैट आई नो। मुझे मालूम है कि मुझे मालूम है। यहां पर दबाकर काम करना होता है। एंड देन कम्स अ फोर्थ लेवल, आई डोंट नो दैट आई नो। मुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे मालूम है। एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली। सब कुछ क्या हो रहा है? अपने आप हो रहा है। सो ऑल यू पीपल हु आर सिटिंग इन दिस रूम, आस्क योरसेल्फ that are you really passionate about learning or not? Are you really seeing that image of yours where you speak dynamic English? तुमने वो पिक्चर दिखाई अपने आप को? जैसे सभी यहाँ बैठे हो, आपसे ये सवाल है मेरा, क्या आपने उस स्तर पर अपनी पिक्चर देखी है जिस स्तर पर तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो? और आंसर होगा ना, मुझे मालूम है, क्योंकि तुम वो एंड पिक्चर देख ही नहीं रहे हो। तुम उस पिक्चर को विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप उस पिक्चर को विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो तो वहां पहुंचोगे भी नहीं।
So right now you all sitting in this room, those who say that I want to be a good speaker of English language, I want to be a perfect communicator, see that picture. See yourself talking in that style. See yourself behaving in that style. See yourself standing on the stage and addressing people and speaking in English language to those people. अपने आप को उस proficiency level में बोलता हुआ देखो. अपने आप को उस proficiency level में चलता हुआ देखो. अपने आप को उस proficiency level में इंटरव्यू टेबल पर बैठे हो, इंटरव्यूअर तुमसे सवाल पूछ रहा, तुम उसको जवाब दे रहे हो. उसमें फील करो अपने आप को, तब तुमको पता चलेगा तुमने पहुंचना कहाँ है. अभी तुमने वो इमेज दिखाई नहीं है, तुमने बस ये बोला आई वांट टू डू इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इंग्लिश बोलना आना चाहिए, बस इंग्लिश बोलने लग जाऊं. अब वो बोलने के बाद कैसी बोलनी है मैंने वो पिक्चर तो है ही नहीं, तो शक्ति कपूर जैसी बोलोगे, फिर शाहरुख खान जैसी आएगी नहीं, क्योंकि शाहरुख खान की जैसी बोलनी है तो तुम्हें शाहरुख खान की पहले क्या देखनी पड़ेगी, पिक्चर. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस और नो? देखिए, कोई भी चीज तुमको जीवन में 2 बार मिलती है. कितनी बार मिलती है? फिर से बोलिए, जोर से बोलिए. पहले विचार में, फिर वस्तु के रूप में. बोलिए विचार और वस्तु. फिर से बोलिए, और अब बोलिए विचार ही वस्तु है. फिर से बोलिए, फिर से बोलिए. से इट इन इंग्लिश. थॉट्स आर थिंग्स. थॉट्स आर थिंग्स. आपका विचार ही आपके सामने प्रैक्टिकल फॉर्म में आता है. तो विचार क्या है? जो आपने देखा. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? सो नॉट दिस इज योर फिजिकल फॉर्म. You have a one way of speaking, you have one way of standing, you have one way of sitting, you have one way of walking, you have one way of talking. Okay? अब आपने देखा कि this is how I'm going to stand. This is how I'm going to talk to people. This is how I'll be behaving when I'll be addressing my audience. This is how I'm going to walk. This is how I'm going to dress up. And this will be the quality of my voice. ये सब आप क्या कर रहे हो? विचार में ला रहे हो. And every day you are seeing it. Every day you are seeing it. Every day you are seeing it. Wait for 3 to 6 months. It will appear. Because it's a universal law. It is a universal law. ये नियम है ब्रह्मांड का कि विचार ही वस्तु बनता है. विचार ही वस्तु बनता. अब विचार ही नहीं आ रहा है तुम्हारा. You're not able to see yourself speaking effectively. You're not able to see yourself talking confidently to people. You're not able to see yourself walking dynamically. You're not able to see yourself shaking hand with somebody with dynamism in your hand and in your body. कैसे मिलेगा तुमको? वो कहता है कि मैं देने के लिए तैयार हूं, मुझे बता तो सही मैं तुझे क्या दूं. क्योंकि जो देने वाला है वो जिस रूप में देगा उस रूप को वो देखना चाहता है. उस रूप के बिना वो काम नहीं कर पाता. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? जैसे आप लोग यहां बैठे हो और मैं अभी आपको बोलता हूं तुम सब गधे हो. कुछ हुआ ना, क्योंकि गधे की पिक्चर आ गई तुम्हारे दिमाग में. ओके? और तुम्हें मालूम है गधा बेवकूफ़ी से जुड़ा हुआ है. तो तुमको जैसे मैंने बोला तुम सब गधे हो, कुछ हुआ तुम्हारे भीतर. क्योंकि जो महसूस कराने वाला उसने गधे की क्या देखी? पिक्चर. और मैं बोला शेर हो तुम लोग, तब भी कुछ हुआ तुम्हारे भीतर. क्योंकि तुम उसने जो करवाने वाला महसूस उसने क्या देखी? शेर की पिक्चर देखी. और मैंने बोला तुम सब हुला लुलुलू हो, तो कुछ भी नहीं हुआ, हंसी आ गई क्योंकि कुछ पिक्चर ही नहीं आ रही है. यस और नो? मैंने जब बोला तुम हुला लुलुलू हो, अब ये हुला लुलुलू क्या तुम सोच रहे हो ये क्या है? कुछ पता नहीं चल रहा ना, क्योंकि इमेज नहीं आ रही है, पिक्चर ही नहीं है, तो हंसी आ गई क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? तो मेरे को जो होना है मेरे साथ, जो मुझे मिलना है, मुझे उसकी पहले फोटो दिखानी पड़ती है कि भाई ये चाहिए मुझे. फिर बोलता अच्छा ये चाहिए, मैं देता हूं. अभी मेरा काम ही देना है. यूनिवर्स का काम क्या है? देना. लेकिन बोलता मुझे पिक्चर दिखा. शब्द मुझे समझ नहीं आते, शब्द मुझे समझ नहीं आते. तुमने बोला आई वॉन्ट टू बी कॉन्फिडेंट, उसको नहीं पता चलेगा व्हाट इज कॉन्फिडेंट. यू सेड आई वॉन्ट टू बी गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसको नहीं पता चला व्हाट इज गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश. तुमने पिक्चर दिखाई that when a good speaker is speaking, he speaks like this, he walks like this, he sits like this. Confident person shakes hands like this, he stands like this, he wears dresses like this. बोलते okay fine, give me time, in 3 months you will be like this. But that picture has to be shown to him every day. वो picture तुमको उसको रोज दिखानी पड़ेगी. When you show that picture to
The universe every day, one day universe will convert it into reality. उसको वास्तविकता में convert कर देता. And talk to all the achievers, those who have achieved in their life, they'll tell कि जब उनको वास्तविक रूप में मिला, उससे पहले कल्पना में उनको मिल चुका था. कोई भी चीज जब तुमको जीवन में वास्तविकता में मिलेगी, उससे पहले ये आवश्यक है कि आपकी कल्पना में आपने उसको पा लिया है. अगर कल्पना में नहीं पाया है तो आपको वास्तविकता में भी नहीं मिलेगी. So all you are in this academy, those who say I want to be a perfect in English, those who say that I want to be a strong communicator, those who say I want to be confident, dynamic, kindly show that picture of your dynamic personality. Show the picture of that confident personality. Show the picture of that effective speaker. जब आप ऐसा करोगे तो बदलाव आएगा, वरना तुमको पता भी नहीं चलेगा कब 30 दिन बीत गए. और तुम जब क्लास ओवर करके एकेडमी से बाहर निकलने लगोगे तो तुमको श्रेया मैम बुलाएंगे, एक्सक्यूज मी कम हियर, यू विल से यस मैम. वो बोलेंगी योर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ड्यू. क्या बोलेंगी? तुमको बहुत बुरा लगेगा कि साला फिर 3,000 रुपये. हमको अच्छा लगता है. तुमको लगेगा अभी तो दिए थे, अभी तो कुछ आता भी नहीं है, और इन्होंने क्या बोल दिया, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ड्यू. हमको बहुत अच्छा लगता है. Are you understanding it or not? So just follow the principles, follow the laws, be in alignment with the system. आपको मेहनत नहीं करनी होती है जीवन में, आपको अपने आप को अलाइन करना होता है सिस्टम के साथ. अगर व्यक्ति सिस्टम के साथ अलाइन कर ले, देखिए पहले वो चलता था ना, जो चक्की चलती थी तो उसकी ताकत लगती थी क्या? नहीं ना. यहाँ से पानी गिर रहा है, पानी के साथ वो पहिया लगा देते थे, वो पहिया घूमना शुरू होता था. जितना तेज पानी का प्रभाव था उतना तेज पहिया घूमता, तो उससे फिर वो पूरा पटा चलता था, उससे मशीन में गेहूं पीस जाती थी. पहाड़ों में आज भी कई जगह मिल जाएंगे, घराट बोलते हैं उनको. घराट सुना कभी? चक्कियाँ होती थी जिसमें पीसे जाते थे, पानी के उससे चलते थे ये सब. तो उसमें क्या ताकत लगी? कुछ नहीं ना. करने वाले ने अलाइनमेंट कर दिया सिस्टम के साथ, कोई मेहनत नहीं है. जहां तुमको लग रहा है मेहनत करनी पड़ रही है, तो मान के चलिए अलाइन नहीं हो तुम, अलाइनमेंट नहीं हो रहा तुम्हारा. अलाइनमेंट करो सिस्टम के साथ. इंग्लिश पढ़ रहे हो तो एकदम मस्त आनंद आना चाहिए, मेहनत नहीं लगनी चाहिए. जिस दिन लगे मेहनत करना छोड़ दो, मत पढ़ो, फिर आनंद आना चाहिए. और अगर मेहनत लग रही है, कुछ गड़बड़ चल रही है फिर. Are you understanding what I am trying to say? It's something very subtle and deeper which I am telling you. Whatever you do in your life, it's never a hard work. And if it is a hard work, there is some mistake happening with you. कुछ गड़बड़ हो रही है आपके साथ, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लग रहा है. वो हार्ड वर्क नहीं होना चाहिए. और अगर हार्ड वर्क करके तुमने पा भी लिया तो उस पीरियड को तुमने खराब कर दिया. जीवन तो समग्र रूप में जीना. तुम एक दिन आईएएस बने और तुम्हें आईएएस बनने की खुशी हुई, लेकिन आईएएस बनने के प्रोसेस में तुम कुत्ते बन गए, कोई फायदा नहीं हुआ. उस प्रोसेस में भी मजा आना चाहिए. ये सुनो, रिसेंटली कुछ साल पहले एक आईएएस ने सुसाइड किया और उसने लाइव वीडियो बनाया. ही सेड आई एम कमिटिंग सुसाइड बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी, आई एम गुड, माई वाइफ इज ऑल्सो वेरी गुड, बट माई वाइफ डजंट लव मी. मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती और मैंने बहुत कोशिश किया कि वो मुझको प्यार करे, और मेरी बीवी मुझको प्यार नहीं करती, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर. बेवकूफ़ था साला. अब बताओ, आईएएस बना है तो अपने जीवन में कोई छोटी मोटी चीज़ है? आईएएस बनने के लिए द टफेस्ट एग्जाम. यस और नो? और एक बीवी तेरे को प्यार नहीं करती है, 10 करती है, उनको ढूंढना. इसको छोड़. एक औरत के लिए तो जिंदगी खराब कर देता है. तेरे को बीवी का प्यार चाहिए था, जिसने पैदा किया था उसने नहीं किया था तेरे से प्यार. जो माँ बाप थे तेरे, जिस दिन तू आईएएस बना होगा कितने खुश हुए होंगे, राइट? और तू आईएएस बना है, इस प्यार के पीछे क्या पड़ा? तू काम करना अपना, उससे प्यार नहीं आ रहा तुझे. तो गड़बड़ कहाँ थी? व्यक्तित्व में. कमी कहाँ रह गई? व्यक्तित्व में. सो माई सजेशंस टू एवरीबॉडी, आप जो भी कर रहे हैं होलसम में कीजिए. होलसम मीन्स हर चीज उसमें मस्त रहना चाहिए, इंजॉय करते हुए कीजिए. यू वांट टू बी एन आईटीएन, बी एन आईटीएन, इंजॉय करते हुए पढ़ो. ऐसा नहीं कि मोटा चश्मा लगा लिया, बॉडी तुम्हारा हाथी के माफिक हो गया, चला तुमसे जा नहीं रहा और आईआईटीएन बन गए, क्या फायदा? यस और नो? अब तुम्हारा उम्र 18 साल का है, शरीर तुम्हारा 25 साल का लगता है. अब आईआईटीएन बन के तुमको 1 करोड़ का पैकेज मिल गया, आइटम तुमको मिलेगी नहीं ढंग की.
और किसी ने तुमसे कर भी लिया शादी, तब भी तुम सुखी नहीं रहने वाले। अग्री डिसएग्री? देखो अनंत अंबानी शादी करता है, यस और नो? फायदा नहीं है कोई। लोग बोलते हैं सच्चा प्रेम, पागलपन है। प्रेम नहीं बोलता कि विवाह करो, प्रेम नहीं बोलता कि विवाह करो। प्रेम तो आजादी है, प्रेम तो लिबरेशन है। अगर उसको वाकई प्रेम था तो उसे समझ आना चाहिए अच्छी लड़की है, कहीं भी ठीक रह सकती है। मैं कहां हाथी का बच्चा, क्यों उसकी जिंदगी खराब कर रहा तू? See, no offense to him. Please understand it. What I'm trying to say is कि हमको समझना पड़ता है लाइफ को। देखने में बहुत अच्छा लगता है सच्चा प्यार, तुम्हें तो नहीं मिलेगा ऐसा भैया। उसी को क्यों मिला सच्चा प्यार? क्योंकि अनंत अंबानी है वो, तो इस सच्चे पे डाउट उठता है फिर। Agree, disagree? And again I am saying, who said that love means marriage? Who said love means marriage? उस लड़की को अनंत अच्छा लगता है, ठीक है। दोस्त में भी प्रेम हो सकता है, भाई से भी प्रेम होता है, बहन से भी प्रेम होता है। स्त्री पुरुष का संबंध अलग होता है, वो सिर्फ प्रेम का संबंध नहीं, उसमें और भी 10 बातें आती हैं। तो कहने का मतलब क्या? जीवन कैसा चाहिए? होलसम। यू बिकम एन ऑफिसर टुमारो, बट उसके साथ साथ तुम्हारे में रस भी है, तुमने जीवन को जिया है। वो जो 5 साल तुमने लगाए हैं उसमें तुमको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तुमने कुर्बानियां दे दी। नो, तुमने आनंद लिया उसमें। अगर तुम 6 घंटे टेबल पे बैठे हो तो मजा आना चाहिए टेबल में बैठने का, कि मजा आया मुझे 6 घंटे टेबल में बैठने का, आई हैव एंजॉयड इट। लेकिन अगर तुमको ये लगा बड़ा कुछ छोड़ रहा हूं, बड़ा कुछ छोड़ रहा हूं, वो भी करना था, वो भी करना था, सब कुर्बान कर रहा हूं, सब कुर्बान कर रहा हूं, जिंदगी में अभाव रहेगा, जिंदगी में अभाव रहेगा। और जीवन सुंदर कब होता है? जब आपके जीवन में अभाव का अभाव हो जाता है। क्या बोला मैंने? अभाव होता ही नहीं है साला। जीवन में अभाव का भी अभाव हो गया है ही नहीं। राम का जीवन ऐसा है, अभाव का भी अभाव है। जंगल में तो भी मस्त, छोड़ना पड़ा कोई बात नहीं। ही इज हैप्पी, ही इज चीयरफुल, ही इज डायनामिक। अपनी 5,000 की नौकरी चली जाए वहां बैंड बज जाती, यही पूरा राज्य छोड़ रहे फिर भी मुस्कुरा रहे। और फिर कोई पूछे कि राम भगवान कैसे हैं, यही बड़ी बात है भैया, भगवान कैसे? एक आदमी जिससे पूरा राज्य छीन लिया जाए, एक आदमी जिसको रातों रात वनवास के लिए भेज दिया जाए, वो फिर भी शांत है। तो आई गेस ये एक गुण काफी है किसी को भगवान बनाने के लिए। अग्री, डिसएग्री? सो वी नीड टू लर्न फ्रॉम दीज कैरेक्टर्स, वी नीड टू लर्न फ्रॉम दीज कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर सिर्फ धूप बत्ती और अगरबत्ती के लिए नहीं होते हैं, ये कैरेक्टर्स हमें सिखाने के लिए होते हैं। और अगर हमें कुछ सिखाते हैं तो सबसे ज्यादा जीवन सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? जीवन। सो यू कम हियर टू लर्न इंग्लिश, इट्स वेरी गुड। You should become a dynamic speaker, you should become confident, you must develop your personality. But in order to do it, the first requirement is, and the first question which you need to ask when you go out of this class is, क्या तुमने वो पिक्चर दिखाई अभी अपने आप को या नहीं दिखाई? अगर नहीं दिखाई है तो उस पिक्चर को आज ही बनाओ, और जितनी बड़ी बना सकते हो ना बनाओ। डरना मत बनाते हुए, डरना नहीं है। गेटिंग इट और नॉट? 2 हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे थे, वाइफ आके बोली तुमको मालूम है वो मेरी सहेली सुनीता मनाली जा रहे हैं घूमने। पति कहता है तेरी बीवी जब देखो कहीं भी घूमने चली जाती है, हमारी जिंदगी और खराब करती है। तो पत्नी कहती है चलो हम भी कहीं घूमने चलते हैं, गोवा चले। पति कहता है छोड़ ना गोवा, गोवा क्या करना जाके। वो कहती है, पति कहता है गोवा छोड़, लंदन चलते हैं घूमने के लिए। कहाँ? पत्नी कहती है देखो जी खर्चा बहुत हो जाएगा। बोला तो क्या हो गया, हमने कौन सा कुछ करना है, प्लान बनाना है लंदन का और कैंसिल करना, पिछले कई सालों से ही तो करते आए। तो जब कैंसिल करना है तो ज्यादा पैसे बचाओ। गोवा का तो कम खर्चा है, लंदन का ज्यादा पैसे बचेंगे। इंजॉय क्या है इस बंदे की? सुकून है ना। नहीं घूमने जा रहे हैं, प्रोग्राम बना के कैंसिल कर रहे हैं, फिर भी साला एंजॉय कर रहे हैं। ये जिंदगी है। दिस इज ब्यूटी, दिस इज ब्यूटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो आप पिक्चर दिखाओ अपनी, तो पिक्चर बड़ी बनाओ ना, क्या टेंशन है?
कोई डर है? पिक्चर ही तो बन रही, कुछ लग रहा है तुम्हारा? लगाओ कुछ नहीं, बड़ी बनाओ. See yourself standing on the stage and talking English like Shashi Tharoor. Have you listened to the speeches of Shashi Tharoor? He's a MP of Congress. His English is very powerful. क्या भयंकर शब्द यूज करता है. उसको समझने के लिए साथ में डिक्शनरी रखनी पड़ती है, वरना समझ नहीं आएगा क्या बोलता है. Watch yourself talking English like him. Or if you see anybody else, have you seen Arnab Goswami? अभी वो हिंदी बोलता है, बट वो जब हमने इंग्लिश सीखा था तो मैंने खास कर उसको बहुत सुना था, because he used to speak very fluently. So if you ever see, sometimes you give me a topic and if I have to talk in it, I can be very rapid and very aggressive also while talking. Why? Because during my learning period I used to watch this man called Pranav Mukherjee. बहुत भयंकर बोलता था और इतना फास्ट बोलता था, क्या लॉजिक्स मारता था. अब तो इसका स्तर गिर गया. बट हाँ, अर्नब गोस्वामी, सॉरी, अर्नब गोस्वामी उस समय बहुत डायनामिक था. सो वी हैव वॉच्ड हिम अ लॉट. तो उसको देखकर हम सीखते थे कि यार ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना. क्या बहस करता है. ही यूज्ड टू कम इन इंग्लिश चैनल ओनली. टाइम्स नाउ इसका उस वक्त इंग्लिश प्रोग्राम रहा करता था. लेटर ऑन जब फिर हिंदी मीडिया पॉपुलर हुआ और टीआरपी में हिंदी न्यूज़ चैनल को ज़्यादा मिलने लगी, तो अर्नब गोस्वामी ने भी हिंदी चैनल चालू कर दिया. सो सिमिलरली तुम भी देखो कि किसकी तरह इंग्लिश बोलना है, किसके जैसा कम्युनिकेटर बनना, उसको पकड़ लो, उसको वॉच करो एंड कॉपी हिम. एट द एंड ऑफ डे यू वांट टू फील प्राउड. यस और नो? आप गर्व महसूस करना चाहते हो या नहीं? कल को तुम्हारा शादी हो गया, तुम्हारा आइटम आया, उसके आगे अच्छा फील करना चाहते हो या नहीं? फिर तुम दोनों आइटम का भी एक आइटम आया, उसके आगे अच्छा फील करना चाहते हो या नहीं? वो तुमको देखेगा कि मेरा बाप कैसा है. तुमको तो तुम्हारी मम्मी ने बोल दिया बेटा पापा रिस्पेक्ट कर, तुमने कर दी अनमने मन से. मन तुम्हारा भी नहीं था पर तुमने किया. क्यों? तुमको संस्कार दिया. किस चीज का? कि मम्मी पापा की क्या की जाती है? इज्जत. तुम्हारा बच्चा ये संस्कार लेकर नहीं आएगा. वो कंपैरिजन करेगा, वो तुमको तराजू में तोलेगा और वो देखेगा कि मेरे बाप में कुछ है या नहीं है. तो अब जो आने वाले समय में बाप बनेंगे उनको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि उनको बैकअप में कुछ नहीं मिलने वाला. हमको मिला, हमारे पप्पा को हमसे ज़्यादा मिला. हमारे लिए पप्पा मीन्स पप्पा. माँ ने बोल दिया बाप ये जो कह रहा वही करना, खबरदार जो तूने बाप के आगे आवाज भी निकाली. ये मम्मी नहीं बोलेगी, वो तो खुद ही बम्बू दे रही होगी बाप उसको. तो तुम तो तैयार बैठे हो कि माँ भी लगी है, मैं भी. यस और नो? सो यू हैव टू बी मोर डायनामिक. व्हाई? बिकॉज वो तुमको चेक करेगा, फिर बोलेगा यस आई एम लकी, आई हैव अ फादर लाइक हिम. एंड इफ यू डोंट हैव क्वालिटी, लुक एट इट, से साला यही मिला था मेरी माँ को. Are you understanding what I am trying to say? You are living in the most competitive world now. आप एक बहुत चुनौतीपूर्ण वाले माहौल में जी रहे हैं. एक पत्नी के रूप में, एक पति के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक बाप के रूप में, एक माँ के रूप में तुम्हारी जिम्मेदारियां बड़ी हो गई हैं. तुमको तोला जाएगा, तुमको जांचा जाएगा और तुमको परखा जाएगा. और अगर तुम चाहते हो कि उस जांच में, उस परखने में तुम ठीक रहो, तो तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा. और उस काम करने में तुम्हें अपने बोलने की कला पर महारत हासिल करनी पड़ेगी. क्योंकि अगर बोलने की कला नहीं हुई तो तुम्हारे मन में कुछ होगा, उसको तुम अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे. और जब एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा. और जब पर्पस सॉल्व नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन होगी. और जब फ्रस्ट्रेशन होती है तो धीरे धीरे डिप्रेशन हो जाता है. Most of the people, those who are suffering from depression, are the people who are not able to express themselves properly. And people who are able to express themselves properly, you will never find them into depression. जो व्यक्ति अपने आप को अच्छे से व्यक्त कर लेता है वो कभी भी विषाद में नहीं जाता है. और जो व्यक्ति अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता है वो विषाद में चला जाता है. Are we meeting guys? Yes or no? तो अगर आप चाहते हो कि ये जो बीमारी जिसको डिप्रेशन बोलते हैं ये आपको ना लगे, तो आप व्यक्त करने की कला में माहिर हो जाइए. अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए. और एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होनी चाहिए. राइट गाइस? आई होप यू अंडरस्टूड द ऑल फार्मूलाज एंड मैथड्स एंड यू विल फॉलो देम. 4 चीज़ें जो आप इंग्लिश सीखने के लिए करें: रीड, राइट, लिसन एंड स्पीक. अपनी उस पिक्चर को दिखाएं जो जैसा तुम बोलना चाहते हो. 4 स्टेजेस हैं लर्निंग की. तीसरी स्टेज में जमकर मेहनत करें ताकि कौन सी स्टेज पे पहुंच जाओ? चौथी स्टेज पर. जितने शब्द हैं काफ़ी हैं, उनके साथ खेलना चालू करो. सेंटेंसेस बनाओ, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लिखो. इफ़ यू डू इट यू विल बिकम अ वेरी गुड स्पीकर.
You are in a very nice academy at the very right time. We are not here to teach you English only. We are here to teach you life. We are here to make you more confident. We are here to develop your overall personality with very profound knowledge. And I'm sure that if you enjoy your stay here, you'll get something out of it. और enjoy जरूर करना. जितने दिन तुम यहाँ आओ, हर सेशन को एंजॉय कीजिएगा. जिस दिन अच्छा परफॉर्म किया उस दिन भी एंजॉय करना, जिस दिन अच्छा परफॉर्म नहीं किया उस दिन भी एंजॉय करना. जिंदगी है, ना मालूम कब फिसल जाए तुम्हारे हाथों से, तो एंजॉय तो करते चलो. मंजिल पे जब पहुंचेंगे उसका एक अलग मजा आएगा, लेकिन यात्रा में भी तो मजा है. अब तुम जिद ही कर लो कि मैं तो मसूरी जाके एंजॉय करूंगा. अरे यात्रा देखना, सफर में बढ़िया तेरे को हल्दीराम भी आएगा, मामा यादव का ढाबा भी आएगा, कहीं पे तू चाय की चुस्की लेगा, कहीं पे तू बढ़िया सा परांठा खाएगा, कहीं पे तू गुप्ता जी की चाट खाएगा, फिर कहीं तू पेड़ों में उगे हुए हरे हरे घास को देखेगा, फिर गन्ने के ऊंचे खेत को देखेगा, फिर तेरी गाड़ी 100 की स्पीड में जा रही होगी, एकदम स्लो हो जाएगी क्योंकि सामने कोई मजे से बुग्गी में बैठ के गन्ने ले जा रहा होगा. तू इरिटेट होगा, वो मस्त चल रहा है अपनी चाल में, तेरी सुनेगा नहीं वो. इसको भी इंजॉय कर. एक भैंसे ने तेरी पूरी स्पीड रोक दी. यस और नो? ये आनंद है. ये क्या है? फिर तू पहुंच जाएगा मनाली, मसूरी, जहां भी पहुंचना है, फिर वहां का मजा ले. वहां मजा ले. जब तू पहुंचेगा होटल नहीं मिलेगा क्योंकि तेरे जैसे हजारों पहुंचे हुए हैं वहां पे. इसको भी मजे ले. पार्किंग के लिए तेरे को जगह नहीं मिलेगी, तू सोचेगा नई नई गाड़ी ली है, कहाँ खड़ी करूं, कोई स्क्रैच ना मार जाए, फिर भी तुझे खड़ी करनी पड़ेगी. उसका भी मजा ले. फिर तू जाएगा, तुझे मालूम है रूम का रेंट 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्राउडेड चल रहा है, तेरे से 5000 लेगा. इसके भी मजे ले. और वापस जब तू आएगा, कोई शरारती बच्चा तेरी गाड़ी में एक हल्का स्क्रैच मार गया होगा, इसके भी मजे ले. ये सब होगा तेरे साथ. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? अब तू घूम के अब वापस आए, गाड़ी में देखा एक साला मार गया स्क्रैच. अब तू रो रहा बैठ के, अरे लग सकता था. जब तूने ओपन में खड़ी की है, संभावना थी या नहीं थी? ये तुझे मसूरी जाने से पहले सोचना था कि आजकल सब वहीं पहुंचे होते हैं, तो अगर मैं जा रहा हूं तो ये सब होगा मेरे साथ. अगर इनके लिए तैयार है तो जा, अदरवाइज अपने घर में मस्त एसी ऑन कर, नेटफ्लिक्स पे फिल्म लगा, एक बढ़िया सा मोइतो बना अपने लिए और मस्त कोई स्नैक्स बना, और दोनों मियाँ बीवी या बच्चे बैठो और इंजॉय करो. इसका भी मजा ले. यस और नो? एंड क्या है? मजा लेना. जिंदगी को एंजॉय करो. दैट इज इंपॉर्टेंट. राइट गाइस? सी यू. थैंक यू.